Good morning everyone. Welcome back again in the computer class. In the last week, we were discussing chapter number 6, that is first step in Java. But now I'm going to leave the chapter in between and we will start a revision of unit test syllabus. So let me tell you, your unit test syllabus is your chapter number 1 and chapter number 3. Chapter number 1 and 3 is your unit test syllabus, right? And some of the chapters are already reduced. Let me tell you that only chapter number 1, chapter number 3, 4 and 6, these chapters will come in your half yearly exam. We have already completed our second chapter, but now because it got reduced already, so only 1, 3, 4, 6, these 4 chapters will come in your half yearly, and in your unit test only 1 and 3, right? I hope this point is clear to each and every student. So I'm going to tell the name of these chapters first. Chapter number 1 is your advanced features of Windows 7. Chapter number 3, advanced formula and functions in MS Excel 2007. Chapter number 4, charts in MS Excel 2007. Chapter number 6, first step in Java. Right? So this is the syllabus of your half yearly exam. So in today's lecture, we will discuss about chapter number 1, chapter number 1, advanced features of Windows 7. So let us revise, and one more thing that you should keep in your mind, that when the question paper will come, so 50% of the questions will come from inside of the chapter. So you all have to prepare inside questions also. Not only depend on the exercise portion. Please make the note, everyone, 50% of the questions in your unit test will come from the inside of the chapter. So very carefully read this chapter. So I'm going to start this and quickly हम इस चीज़ को पढ़ेंगे जल्दी से, क्योंकि already we have covered this. So our first thing is introduction of this Windows 7. Now what is Windows 7? Windows 7 is actually our operating system. Now we are going to discuss about how to open Windows Explorer. So Windows Explorer is what? It is a program used across the world. It is a unique program that helps us to organize and view the files and folders. Means Windows 7 is an operating system that helps us to organize the different types of files and folders. ठीक है, यानी कि same types of file we can keep in a separate folder. फॉर एग्जाम्पल लाइक म्यूज़िक की कोई फाइल्स है तो हम उसको अलग फोल्डर में प्लेस कर सकते हैं. इफ़ वी आर हैविंग एनी पिक्चर्स वी कैन प्लेस इट anywhere else. Like that we can do the divisions depend on the type of file. Next is how to open the Windows Explorer. So steps are here. Click on the start button, click on all programs, click on accessories and click on Windows Explorer. Right? Here you can see the step from the book. Step number 1 is here. Click on the start button. This is your start button here. Then step number 2, look at this. Step number 2, click on all programs. When you will, after this step number 1, you will click on step number 2, that is your all programs. Step number 3, click on accessories. This is here. ठीक है, accessories यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिकली लिखा हुआ accessories. And then step number 4 is Windows Explorer. So this is how you will open it. ठीक है. Now moving on to next, libraries. So libraries are what? These are mainly used to manage the music, pictures, documents, etc. Means a library brings together the similar category files stored in different places but hides their original location. इसका मतलब क्या है कि जो different types की हम बहुत अलग अलग तरीके की फाइल्स बना सकते हैं. जैसे कि हमारे पास म्यूज़िक हो सकता है, पिक्चर्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स हो सकती हैं. तो सेम टाइप ऑफ फाइल वी कैन पुट together, and that is possible with the help of library functionality in Windows Explorer. Now next is
This is only a quick recap, that's why I'm not going to explain it in detail. Now see how to open the libraries. लाइब्रेरी ओपन करने के लिए आप ऊपर से यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे ऊपर जैसे आप इस एरो पे क्लिक करोगे सो ऑटोमेटिकली सम ऑप्शंस विल कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड फ्रॉम देयर यू कैन सिलेक्ट द लाइब्रेरी ऑप्शन. ठीक है, सो आपका लाइब्रेरी जो होगा वो ओपन हो जाएगा. वंस यू विल ओपन द लाइब्रेरी यू कैन सी हियर इनसाइड द लाइब्रेरी वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ दिस लाइब्रेरीज. कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं? डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी, म्यूजिक लाइब्रेरी, पिक्चर्स लाइब्रेरी एंड वीडियोज़ लाइब्रेरी. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जा सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि कोई पीडीएफ फाइल आपके पास है. ठीक है, या फिर एमएस वर्ड में आपने कोई फाइल बनाई है यूजिंग एमएस वर्ड, सो दैट विल कम अंडर योर डॉक्यूमेंटेशन, दैट मीन डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी. म्यूज़िक के अंदर आपकी आएंगी ऑडियो फाइल्स, जितने भी आप सॉन्ग्स होते हैं, ऑडियो सॉन्ग्स होते हैं, दैट विल कम इन म्यूज़िक लाइब्रेरी. नेक्स्ट पिक्चर्स क्या होती हैं? पिक्चर्स का मतलब जिसमें कि आपकी आप कह सकते हो कि आपका इमेज फॉर्मेट्स होते हैं, जो आप पिक्चर्स क्लिक करते हो वो किस में आता है? पिक्चर्स लाइब्रेरी में. एंड द लास्ट वन इज़ वीडियो, दैट कंटेन्स योर वीडियोज़. ठीक है, नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हेयर we are having the backward and forward button also to move in the libraries, and here these are already given back and forward. ठीक है, this is used for backward and this is used for your forward button. आपको आगे लाइब्रेरी मूव करना है तो आप forward button का यूज़ करोगे, and if you want to go back to the original location again then you will use your backward button. Next, here the examples are given for your document library, music library and pictures library and videos library. You can see in your book also, picture will be more clear in the book. Now next, how to change the views of files and folders. ठीक है, आपको पता है कि व्हेन यू विल ओपन द विंडोज़ एक्सप्लोरर यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर्स. जब आप किसी भी चीज़ को ओपन करते हो, ठीक है, बहुत सारे आपके पास फाइल्स और फोल्डर्स आते हैं, तो आप उनके व्यूज़ को चेंज कर सकते हो. मीन्स इफ़ यू वांट कि किस तरीके से वो शो होना चाहिए स्क्रीन पर आपकी, तो यू कैन चेंज द व्यू ऑफ द फाइल्स एंड फोल्डर्स. एंड हाउ इज़ दैट पॉसिबल? लुक एट दिस ऑन द राइट साइड, दिस साइन. When you will click on this sign, it is used to change the view. So different number of options will come in front of you. ठीक है, and these are what? These are here your extra large icon, medium icon, small icon, list, details, styles, and the last one is content icon. राइट, तो हम किसी भी फॉर्मेट में अपने फाइल्स और फोल्डर्स को व्यू कर सकते हैं. नाउ वन बाय वन वी विल सी हेयर. लुक एट दिस. Extra large icon is used to display the files and folders as extra large icons. जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करोगे एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, तो आपके जो फोल्डर्स हैं वो देखो कितने बड़े साइज में दिख रहे हैं. दिस इज़ योर फोल्डर नंबर 1 2 3 4 लाइक दिस. दैट मीन्स द साइज ऑफ द फोल्डर इज़ वेरी लार्ज. Now see for the second one, this is your large icon in which the size of each folder will get reduced to this much. You can even try this option in your laptop or on your computer एट योर होम. ठीक है, सो यहाँ पे देखो जो फोल्डर्स का साइज़ है दैट इज़ क्वाइट बिगर. यहाँ पे लार्ज में देखोगे तो दैट इज़ लिटिल बिट स्मॉलर देन एक्स्ट्रा लार्ज आइकन. इफ़ यू विल सी फॉर द नेक्स्ट वन, मीडियम आइकन. दिस इज़ योर मीडियम आइकन हेयर. मीडियम में आप देखो कि जो फॉर्मेट आपका जो साइज़ है आइकन्स का दैट विल बी रिड्यूस्ड. ठीक है, टू सम एक्सटेंट. देन नेक्स्ट वन इज़ द स्मॉल आइकन. स्मॉल आइकन में आप देखो, सी दिस स्मॉल आइकन, द साइज ऑफ द फोल्डर इज़ टू शॉर्ट. कितना ज़्यादा स्मॉल है, राइट. सो दीज आर हेयर योर साइज. अब आप देख सकते हैं टुगेदर योर एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम उससे भी छोटा हो गया एंड स्मॉल उससे भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा. तो सबसे बड़ा साइज़ किसका होता है? एक्स्ट्रा लार्ज आइकन. नाउ नेक्स्ट इज लिस्ट आइकन. लिस्ट आइकन इज़ यूज टू डिस्प्ले द फाइल्स बाय द लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स. यानी कि एक लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करता है. लिस्ट का मतलब जैसे कि 1 2 3 एंड 4, दैट मीन्स इन अ सीक्वेंस लाइक दिस. ठीक है, फोल्डर्स को एक सीक्वेंस में डिस्प्ले करता है, एक लाइन में. ठीक, नेक्स्ट वन इज़ डिटेल्स. डिटेल्स में क्या होता है आपका? डिटेल्स आपका लिस्ट की तरह ही होता है, मतलब लिस्ट के फॉर्म में ही फोल्डर्स को डिस्प्ले करता है, लेकिन सम एक्स्ट्रा डिटेल्स आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द फाइल्स और फोल्डर्स. जैसे कि आपका नेम डिस्प्ले होगा, उसका टाइप, उसका साइज़ और कब आपने उस फाइल को बनाया था. दैट मीन्स सम डिटेल इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो गेट अटैच टू द फोल्डर.
नेक्स्ट वन इज़ योर टाइल्स. ठीक है, टाइल्स इज़ क्वाइट सिमिलर टू योर डिटेल्स, जहाँ पे आपकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है, बट इन प्लेस ऑफ दैट आपका देखो आपको जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट व्यू, यानी कि सिंपली शो करता है दिस इज़ योर फोल्डर नंबर 1, फोल्डर नंबर 2, फोल्डर नंबर 3, देन 4, देन 5 एंड सो ऑन लाइक दिस, right, along with some information related to a particular folder. This is all about your tiles. Next one is your content. Content में भी अगर आप देखोगे is used to display the files and folders and also include some details. And what are the details? Its name, type and size. ठीक है, कि आपने उस फाइल का नाम क्या है, उस फोल्डर का नेम क्या है, उसका टाइप किस टाइप का है, यानी कि वो पिक्चर टाइप की है, वो म्यूज़िक टाइप का है, या वो किस टाइप का है. ठीक है, वीडियोस स्टोर कर रहा है, किस टाइप का फोल्डर है. एंड द नेक्स्ट वन इज साइज़, यानी कि साइज़ का मतलब कितने KB में है, या MB की फ़ाइल है, या GB का फोल्डर है, तो कितने साइज़ का है. ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है कंटेंट में. नाउ नेक्स्ट वन, हाउ टू ऑर्गेनाइज द फाइल्स एंड फोल्डर्स. नाउ बहुत ही ईजी है ऑर्गेनाइज करने के लिए. आप अगर देखते हैं, हम सबसे पहले स्टेप आता है हाउ टू ओपन अ फाइल और फोल्डर. तो आप सबको पता है किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए यू आर वेरी मच फेमिलियर विद ऑल दीज स्टेप्स हाउ टू ओपन इट. सो फर्स्ट स्टेप इज यू कैन डबल क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर विच यू वॉन्ट टू ओपन. द सेकेंड थिंग इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स, लाइक आपको जिस फोल्डर को ओपन करना है यू विल सिलेक्ट दैट फोल्डर. Suppose I want to open this folder, so I will select this folder, then you will click on open option. Look at here, open option is there, this side. When you will click on this open option, your folder will get opened here. अब यहाँ पे आप देखो, आपने जब ओपन किया तो आपकी 3 फाइल्स यहाँ पे क्या हो रही हैं, ऑलरेडी गोइंग टू डिस्प्लेड, राइट. नेक्स्ट वन, हाउ टू क्रिएट द न्यू फोल्डर. अगर कोई नया फोल्डर बनाना है तो कैसे बनाते हैं. सो स्टेप नंबर 1 इज़ सिलेक्ट द फोल्डर. सपोज करो आपको किसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है, ठीक है, तो यू विल सिलेक्ट दैट फोल्डर. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 इज़ क्लिक ऑन न्यू फोल्डर. लुक एट दिस इन द डायग्राम, देयर इज द ऑप्शन न्यू फोल्डर. दिस इज़ न्यू फोल्डर. आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे ही आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, देखो इस तरीके का कुछ फोल्डर बना हुआ आएगा like this, and you can give the name to this folder, whatever name you want to give. So this is how you can create a new folder also, right. Now moving on to next, how to rename a folder. तो rename करने का बहुत ही सिंपल सा स्टेप क्या है, see from the diagram, let me show you. Select the folder which you want to rename. Step number 1. Step number 2 is from the organize menu you will click on rename option. So firstly you click on organize menu, then you can click on rename option. When you will click on rename you will get a new folder. That means automatically वो folder तो वही होगा, लेकिन क्या होगा वहाँ पे आपका, आप वहाँ से जाके अपना नया कोई भी नेम सजेस्ट कर सकते हो, उसमें टाइप कर सकते हो, right. So this is how you can create, you can rename a folder. Next is how to select the files and folders. If you want to select all the files and folders, so how will you do that. उसको करने के लिए कुछ नहीं है, आप क्या करो, आप पर्टिकुलर एक लोकेशन को ओपन करो जहाँ पे आपको फाइल्स और फोल्डर्स को ओपन करना है, उनको सिलेक्ट करना है. एंड देन आफ्टर दैट फ्रॉम द ऑर्गेनाइज मेन्यू हेयर, ऑर्गेनाइज मेन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज मेन्यू में एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑल. This option is select all. When you will click on this select all, automatically all these folders will get selected, right. Next is how to delete the files and folders. तो आपको delete करना है, that also you know it very well. आपको delete करना है तो क्या करोगे आप, step number 1 is click on that particular file or folder which you want to delete. Step number 2, click on the organize menu and then click on delete option. So when you will click on this delete option, a message box will come in front of you and that will confirm to you whether you want to surely delete the folder or not. ठीक है, एक मैसेज बॉक्स आपके पास आएगा जो आपसे पूछेगा कि आप श्योरली इसको डिलीट करना चाहते हो परमानेंटली, तो यू विल क्लिक ऑन ओके एंड इट विल गेट डिलीटेड. नेक्स्ट इज हाउ टू मूव फाइल्स एंड फोल्डर्स. नेक्स्ट इज हाउ टू मूव फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. सो यू नो मूव का मतलब क्या होता है, दैट the folder will get deleted from the original location and will get saved to the another location. So see the steps.
ये भी आप ऑलरेडी करते आते हो, ठीक है। स्टेप नंबर 1 जिसको आपको मूव करना है, यू विल सिलेक्ट दैट फोल्डर, देन यू विल क्लिक ऑन कट ऑप्शन, then step number 3 open the desired location where you want to actually move it, and step number 4 is click on paste. So the most important thing is what, अगर आपको move करना है, so you will first cut and then you will paste. आपको कट करना है उस पर्टिकुलर लोकेशन से, और जहाँ पे भी आपको मूव करना है उस लोकेशन को ओपन करके यू विल सिलेक्ट द ऑप्शन पेस्ट. नेक्स्ट इज हाउ टू कॉपी द फाइल्स एंड फोल्डर्स. कॉपी कराने के लिए व्हाट वी डू, अगेन सेम, यू नो इट ऑलरेडी. कॉपी कराने के लिए आपको जिस फोल्डर को कॉपी करना है, यू विल क्लिक ऑन दैट फोल्डर, स्टेप नंबर 1, देन यू विल क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन. Step number 3 open the desired location where you want to copy it, and step number 4 click on paste. right, यानी कि दोनों में डिफरेंस है. मूव इज समथिंग एल्स एंड कॉपी इज समथिंग एल्स. मूव का मतलब होता है कि दैट फोल्डर विल गेट डिलीटेड फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन एंड विल गेट कॉपीड, दैट मीन्स विल गेट मूव टू द अनदर लोकेशन. बट इन केस ऑफ कॉपी, द कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी इज क्रिएटेड, means the folder will get retained at its original location as well as at the new location. So in case of moving, we are actually doing what, we are actually doing cut and paste. But in case of copy, we are actually doing what, copy paste, copy and then paste, right? Now next, how to view the properties of files and folders. Next topic, properties. अगर आपको view करनी है, properties का मतलब होता है if you want to see that on which date you made a particular folder. आपने किस दिन एक folder को बनाया था, at what time you made it, and what is the size of that file or folder. So you can check its properties by right click. आप क्या कर सकते हो, देखो, या तो आप राइट क्लिक करके भी चेक कर सकते हो प्रॉपर्टीज, एंड दी अनदर वे व्हाट इज गिवन इन योर बुक इज दैट यू कैन सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर. दिस इज स्टेप नंबर 1, हुज प्रॉपर्टी यू वांट टू सी. जिसकी प्रॉपर्टी आपको देखनी है उस पर्टिकुलर फोल्डर पे क्लिक करते हैं. देन आफ्टर दैट ऑर्गेनाइज मेन्यू में जाके प्रॉपर्टीज ऑप्शन आपको मिलेगा. यहाँ से अगर आप देखोगे, लेट मी जूम दिस पिक्चर, सी देयर इज अ ऑर्गेनाइज मेन्यू. ऑर्गेनाइज मेन्यू में आपके पास एक ऑप्शन आएगा, दिस इज़ योर प्रॉपर्टीज़. हेयर इट इज़ गिवन, नॉट क्लियर टू मच. प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन इज़ देयर. सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस ऑर्गेनाइज, ऑटोमेटिकली द ड्रॉप बॉक्स विल कम एंड यू विल सिलेक्ट फ्रॉम देयर प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन. जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करोगे, आपके पास एक और बॉक्स आएगा लाइक दिस, सी दिस वन. यहाँ से आप अपने पूरे फोल्डर्स की प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हो कि आपने उसको कब बनाया था, वो कितना साइज़ हमारे हार्ड डिस्क पे ले रहा है, उसका टाइप किस साइज है, या फिर उसका नेम क्या है, एंड ऑल दैट डिटेल्स. नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट द शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप. शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप पे. शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए स्टेप्स क्या है कि जिसका आपको शॉर्टकट क्रिएट करना है, यू विल सिलेक्ट दैट फाइल और फोल्डर. देन आफ्टर दैट यू विल राइट क्लिक ऑन दैट फोल्डर. वन ऑप्शन विल कम, सेंड टू. जैसे ही सेंड टू ऑप्शन आएगा तो आप सेंड टू के बाद एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, दैट इज़ योर क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप. तो जैसे ही आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, स्टेप नंबर 3 फॉलो करोगे, सो योर शॉर्टकट विल कम, ठीक है, ऑन द डेस्कटॉप. एंड व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग शॉर्टकट. एडवांटेज इज दिस कि सपोज इफ़ अ फाइल और फोल्डर इज सेव्ड एट द वेरी इनर लोकेशन, यानी कि कभी जैसे बहुत सारे फोल्डर्स के अंदर है, बहुत सारे सब फोल्डर्स के अंदर हमारी कोई फाइल सेव है और उसको मुझे डायरेक्टली ओपन करना है जस्ट ओनली ऑन वन क्लिक, तो आई कैन क्रिएट द शॉर्टकट ऑफ दैट ऑल्सो ऑन द डेस्कटॉप, सो दैट इफ़ आई विल क्लिक ऑन इट, so means on desktop it should be visible to me and I can directly click on that particular folder and it will get open in front of me. So that is the only use of creating shortcut. Next is the last C is your CD burning. CD burning is what? It is a process of copying the files to the CD or DVD.
अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जो हमारे लैपटॉप में है, हमारे कंप्यूटर में है, एंड इफ़ आई वांट टू ट्रांसफ़र इट टू एनी सीडी और डीवीडी, अगर मुझे उसको कोई सीडी डीवीडी में ट्रांसफ़र करना है उस डेटा को, सो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज योर सीडी बर्निंग। सीडी बर्निंग का मतलब हो गया सीधा सा क्या, कि आप डेटा को कॉपी कर रहे हो ऑन द सीडी। एंड फॉर दैट व्हाट यू एक्चुअली नीड, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। द फर्स्ट वन इज़ अ रिकॉर्डेबल सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव। ठीक है, एक आपको सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, पिक्चर्स के साथ मैंने आपको शो किया था कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, व्हेन आई एक्सप्लेन दिस चैप्टर। देन अ राइटेबल सीडी रोम, राइटेबल सीडी रोम। ठीक है, देन अ सीडी बर्निंग सॉफ्टवेयर। आई शोड द पिक्चर ऑल्सो फॉर सीडी रोम। सीडी डीवीडी तो सबको पता है कि क्या होती है, ये जो आपके पास देखो यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाई हुई है, दिस इज़ योर सीडी और डीवीडी ड्राइव। ठीक है, लेकिन सीडी रोम क्या होता है, जिसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं सीडी को टू कॉपी द डेटा। तो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक सीडी मतलब एक राइटेबल सीडी रोम की ज़रूरत पड़ती है, एंड अ बर्निंग सॉफ्टवेयर ऑल्सो। So these are our requirement to copy the data to the CD or DVD. Then how to copy it. So here the steps are given. You can read out the steps directly. Step number 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, read out the steps for this. Then the next topic is operating system. Now operating system is what? See, a computer which is made up of numerous parts does many tasks at a time. So it needs a manager which is called the operating system of the computer. And this line is very very important, that which device, और हम कह सकते हैं that who is called the manager of the computer system. So answer will be what? Operating system. क्यों? क्योंकि operating system क्या होता है हमारा, एक्चुअली वो कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। ठीक है, सो व्हेन द यूज़र, दैट मीन्स व्हेन एनी एंड यूज़र गेट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द ओनली, यू कैन से इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है थ्रू विच द एंड यूज़र कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि जितने भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर से अटैच्ड होती हैं, जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, यूएसबी है, ठीक है, सो मेनी डिवाइसेस आर वी कैन कनेक्ट टू द कंप्यूटर सिस्टम। सो उसको पूरी मैनेज करने का काम कौन करता है, उसको जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं उन सबको मैनेज कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज द मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. Right, now this was the only definition. Then next one is, what is graphical user interface, GUI? So GUI, as you know, that the full form is graphical user interface, that allows the user to interact with the electronic devices through graphical icons and visual indicators. Focus on the 2 points here, graphical icons and visual indicators. Now what does this means? क्या मतलब है इनका? सिंपल मीनिंग इज़ व्हाट, जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इफ़ टॉक अबाउट विंडोज़ 7, सो विंडोज़ 7 को व्हेन यू विल ओपन, यू कैन सी अ नंबर ऑफ icons on your screen. See, look at this, all these are icons, and these icons are actually known as your GUI, graphical user इंटरफेस. इनको हम क्या बोलते हैं? GUI बोलते हैं. ठीक है, ये क्या है? हमारे ग्राफिकल आइकन्स हैं जिसको हम देख के और डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, जो भी आपको ओपन करनी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज लुक एट दिस. नाउ दिस इज़ एक्चुअली यूज फॉर योर म्यूज़िक. दिस इज़ द ग्राफिकल आइकन फॉर म्यूज़िक. इफ़ आई से फॉर दिस इज़ द ग्राफिकल आइकन फॉर योर कैमरा. ठीक है, दिस इज़ द ग्राफिकल आइकन फॉर योर वीडियो चैट. Like that we can have multiple graphical icons and we can directly access it. Next one is, so some examples of the operating systems are given here, like Unix is the operating system, MS-DOS, Mac operating system and MS Windows. So these are some of the examples of your operating system. नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक इज़ MS विंडोज़. तो विंडोज़ क्या है हमारे पास? MS विंडोज़ भी क्या एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है. ठीक है, MS विंडोज़ इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट वाज गिवन बाय विच कंपनी? बाय माइक्रोसॉफ्ट
कॉरपोरेशन। किसने दी थी ये, किसने बनाया था? ये जो विंडोज़ 7 है आपका या विंडोज़ 8 है, जितने भी वर्जन्स हैं विंडोज़ के, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट वाज गिवन बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी, राइट। एंड देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज़ नोन एज योर बूटिंग। बूटिंग का क्या मतलब होता है? बूटिंग का मतलब होता है, सी, व्हेन you start your computer, when you switch on your computer, the operating system gets loaded into the computer's memory and this process is called what? Booting. ठीक है, जैसे ही आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है आपका? आपने देखा है कि कई बार आपकी स्क्रीन पे विंडोज़ 7 का लोगो आता रहता है, जैसे यहाँ पे देखिए, लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका विंडोज़ 7 या विंडोज़ का कोई भी जो भी वर्जन है उसका क्या आ रहा है, पर्टिकुलर आइकन आपको शो हो रहा है। तो जब तक ये आइकन चलता रहता है ना, आपकी स्क्रीन पर शो होता रहता है, इसका मतलब है कि बूटिंग चल रही है। बूटिंग होने का मतलब होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बैकएंड साइड में क्या हो रहा होता है, लोड हो जाता है मेमोरी के अंदर, और जैसे ही वो मेमोरी के अंदर लोड होता है तो वो जितनी भी डिवाइसेस जो आपकी कनेक्टेड होती है उन सबको क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है कि दीज आर द डिवाइसेस विच आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर सिस्टम, और मुझे उससे पर्टिकुलर क्या काम करना है, हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे तो क्या चीज़ें होंगी उससे, वो सब मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हम उसको मैनेजर भी बोलते हैं। एंड देन सम फीचर्स आर ऑल्सो गिवन फॉर विंडोज़, like programs are arranged in different files and folders. Step number 1 already we have studied. It is a graphical based. Graphical based means it supports UI feature. Already we have done this feature also. Third is it has icon which helps to do different things very quickly. Already done. जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कैमरा के लिए होता है, वीडियो चैट के लिए अलग है, म्यूजिक को ओपन करना है तो अलग है. That means different icons are there that we can easily directly interact and it is very easy to use. So these are some features of your operating system. Then the last thing is very important is this point. William Henry Bill Gates is the founder of Microsoft Corporation. ये जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है ये इनके फाउंडर कौन है? विलियम हेनरी बिल गेट्स। एंड द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड in 1983. These are the two most important points that you need to keep in your mind. Right? So here we have completed our revision of chapter number 1. In the next video, we will discuss the revision of chapter number 3 because chapter 2 is now you're out of syllabus. So that's all for it. Thank you. Have a nice day.